Assalamu alaikum, Fiza. Thank you so much for joining the session. How are you? Welcome, Salam Umair. I'm good, and thank you for having me. I'm Uh, good. How are you? I'm good. I'm good. So, I pretty much know ke a lot of people know you on LinkedIn, but just for the audience, I would like you to introduce yourself a bit. Okay, so hi everyone. So I'm Fiza, and I am currently pursuing my master's in international negotiation and conflict resolution from the University of Kent in Canterbury. I'm right now in UK, and you came up with me. You came up to me with this amazing topic, and I really feel that it's really important to talk on this, and I'm really looking forward to this session. Perfect, perfect. So, as far as the student thing, so I'm pretty much sure कि हमारी conversation बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएगी क्योंकि स्टूडेंट्स एजुकेशन स्टडिंग अब्रॉड टेकिंग जॉब्स is some Mhm, sort of connected. So mhm, just for the pointers, let's start with thing. I'm pretty much sure कि Fiza, you are working in you're studying in UK and then you are like there for a longer period of time till now. तो अगर मैं ये पूछूं कि फिजा व्हाट्स ग्रोथ फॉर यू, नॉट ओनली प्रोफेशनली ग्रोथ, mhm, एज अ जर्नल लाइक हर mhm, बंदे की एक पर्सनल ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है. सो mhm. if I ask you what's growth for you, what will be your answer for that? I mean, it's pretty much straightforward for me, as in, I'd say growth is uh, being better in any way. And it doesn't have to be quantified in like certain time period. सब क्योंकि सबकी जर्नीज डिफरेंट होती है, सबके लिए ग्रोथ डिफरेंट होती है. मेरे लिए ग्रोथ इज मच मोर अबाउट being aware and being conscious and mindful of what decisions I take in my life. Those decisions can be regarding my own personal, mental well-being, my my career, my choice of partner, etc. So in any way, I want myself to be better than yesterday. So that's kind of growth for me. Totally agree. It's like the ongoing process जो आप हमेशा सीख रहे होते हैं. बिल्कुल. And रोज. just for an idea, you know that कि आजकल जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ या पर्सनल ब्रांडिंग पे काफी बातें हो रही हैं. ठीक है, Mhm, people are now what I say, mhm, giving more importance towards the personal growth as well as the professional growth. They are like now they are like using LinkedIn a lot. They have connected with different mhm, people, like making the connections. So mhm, I think LinkedIn plays a very vital role in the growth sector. If I'm talking about the growth as in professionally. So what do you mhm, think, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि यार एक स्टूडेंट के लिए लिंक्डइन कितना जरूरी है टू स्टार्ट ऑफ. और हम इस कॉन्वर्जेशन को इस तरीके से देखते हैं कि यू बीइंग स्टडिंग इन यूके एज वेल, तो यू नो mhm, कि यार वहाँ के स्टूडेंट का क्या थॉट प्रोसेस है एज फार mhm, एज के पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का क्या थॉट प्रोसेस है. मुझे जहाँ तक लगता है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, नॉट ऑल बट a majority of them is more likely towards कि यार हम 4 साल के बैचलर्स के बाद then we'll start the job. A lot of mhm. people don't start the job early. कुछ लोगों को करनी पड़ती है, कुछ लोग अपने पैशन की वजह से करते हैं. What do you think is the importance of LinkedIn in a student life? I mean, it's really important, and इसकी importance को हम किसी तरह से neglect नहीं कर सकते हैं, as long as you know how to use it. That's the key thing. So, for example, we use many different social media platforms, and वो जो भी social media platforms हैं, वो किसी ना किसी मकसद के तहत बनाए गए हैं. So, using that platform aligned with that reason why it was made is essential to know first and then use it. So when I came here, the most striking thing for me as a student was that people do really are serious about posting on LinkedIn and having a social profile on LinkedIn, which is different from a social profile you have on Insta or Facebook, etc. So and it's really I felt like it really sets your foundation for your professional outreach. So एक आपको एक तरह से कंप्लीट पैकेज में अपने आप को प्रेजेंट अगर करना हो इन इन योर प्रोफेशनल लाइफ,
and the other person wants to know about you without having one to one conversation, they can pop up on your LinkedIn, and you can have they can have an idea of who you are, what you work for, what are your strengths, and how authentic you are as a person. And that's also subjective, because your authenticity sometimes get detract, because you have to because आप इतने engagement और ये metrics के you know उसमें फंस जाते हो. So it's important to be authentic, and it's important to work on LinkedIn. One thing back in Pakistan that I can recall is that even me, as a graduate from LUMS, I had a lot of competitive class fellows and batchmates who were really keen to update their LinkedIn, and who did some internships, and they had that profile set up, but I lagged behind it, and I was not I didn't felt like it was much more of a platform that served me. But when I transitioned from Pakistan to UK, had a sense that I had to change my ways, and if I have to be you be better, in your words, in order to grow and in order to stand out with the community here. So ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप सीखते हो, एंड अपने वेज़ चेंज करने पड़ते हैं आपको. सो आई बिकेम अ मच more interactive person on LinkedIn. I made healthy connections, I made good connections, and that's how I found you, and as well, and now we're here. So yeah, that the power of LinkedIn is really good in that way, and you should utilize it Perfect, as perfect. students. Yeah, thank you so much for mentioning this, that LinkedIn is one of the key element of we having this discussion. Yeah. That makes me to that another point of people are usually saying कि यार LinkedIn optimize करो, LinkedIn की optimization होनी चाहिए. The big words like engagement, impressions, and all sort of things. To be very honest, a lot of people don't understand the meaning of optimization. ठीक है, Mm-hmm. क्योंकि optimization is not a thing that you do one day and the next day everything's like run smoothly. It's not a train reaction. So for a Mm-hmm. student point of view, what do you think यार optimize करने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं? क्योंकि Mm-hmm. everyone has a growth plan because I'm using the platform for a longer period of time, and as you Mm-hmm. said that you were not using before and then you start using it, so you have your own experiences. So Yeah. what LinkedIn optimization strategy, or I'll say कि यार किस तरीके से आपको LinkedIn को स्टार्ट करना चाहिए, क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? What do you think about it? Like, what's your thought process कि LinkedIn के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर मैं पूछूं कुछ? Acha, so the main and basic thing is the key profile essentials that you need to uh, be updated on. जिसमें आ जाता है the quality of your the profile picture you post, the quality Okay, of headline that you post, okay, and मतलब जो सारे basic sections हैं, you have completed those. okay, Once you've completed those, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता एक elite user, या you can say एक pro user के category में shift हो सकते हो. Once you've gained that, once you've completed those, and उसमें आपको चाहिए as a student to mention your experience, mention um, uh, your internships, mention your research, what you're excited about, what you're looking forward, and be authentic, as I said before, and do not be like uh, do not be deceiving in any manner, I'd say. So all the certifications you do, all the networking events that you take part in, so is tarah hota ye hai कि once you have completed all these sections, the LinkedIn kind of as a platform knows that this person is a verified community member, and obviously आप फिर अपने लाइक माइंडेड लोगों से भी कनेक्ट करते हो, एंड आपको करना चाहिए, आपको खुद रीच करना चाहिए. बट ऑलवेज बी माइंडफुल दैट यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन दैट वे. You don't want yourself to be
seen as a creep. You should be really, really polite and respectful in the way you communicate, and in the way you in the way you choose certain people to enter your, your community there, because you have a limit of like 30,000 connections. इसके बाद LinkedIn और ज़्यादा connections आपको बनाने की इजाज़त नहीं देता। तो आपको चाहिए कि आप वो जो उसको फुली यूटिलाइज करो इस तरह के मैनर में दैट इट सर्व यू करेंटली, एंड इट ऑल्सो सर्व्स, it lays the foundation of where you want to go and how you want to be presentable in this world of any of your industry, I'd Perfect. say. दैट कम्स टू अनदर पॉइंट, क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे हैं क्या ऑप्टिमाइजेशन की इंपॉर्टेंस पे, ठीक है? सो you were as you tell me that कि यार आप पहले लम्स में थे, लम्स से फिर आप यूके गए, so Mhm. there is like a full on change in the life cycle, in बिल्कुल। the student life cycle, how you are studying over here and then move towards the UK lifestyle, studying over there, living over there. So what do you think, how LinkedIn help you, like for example, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी आपने मेंशन करा, बहुत सारे लोग जो है ना वो आपके LinkedIn पे आके आपके बारे में ही जानते हैं प्रोफेशनली, बिल्कुल। क्योंकि हम्म। I'm not sure, मैं इसका ये भी एक चीज को पॉइंट आउट करना चाहूंगा. What's your thought on, is people in UK is also looking, also using LinkedIn as Instagram and Facebook kind of a thing, जैसे हम पाकिस्तान में आजकल देख रहे हैं, या वहां पे क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंस है? क्योंकि मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कंटेंट क्रिएशन इज गुड, बट डू यू हम्म। थिंक दिस इज समथिंग, this is a very professional platform, it should be knowledgeable things, you don't want to share those things, क्योंकि पाकिस्तान में हम्म। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, it's LinkedIn is equals to marriage bureau, LinkedIn is equals to high hello sessions and a lot of things. हम्म। So what do you Yeah. think कि यूके में भी अगर एक पाकिस्तानी लेमैन मेरी तरह के से ये पूछे कि क्या यूके के लोग भी इसी तरीके से मैरिज ब्यूरो की तरह यूज कर रहे हैं उसको या नहीं? I mean, I've for me that's kind of a harsh judgment, but I'd say there are really, really, um, really professional people on LinkedIn who use it in Pakistan, who use it for it being a good means. But obviously, जिस तरह हर पहलू के एक गुड साइड होती है और एक बैड साइड होती है, वैसे ही हर इस प्लेटफॉर्म का भी है. पीपल sometimes don't know and aren't aware कि उनको कैसे use करना है. So sometimes they see certain people, oh, they have posted such, this is this, I should hop on the stream strategy and use it for myself, but it doesn't work for you because it's not authentic to you. It's not your own voice. So here, as far I've been here like it's my fourth month now. So मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे थोड़ा professionalism है ज़्यादा, and people use LinkedIn uh, as a value providing platform, जहाँ पे हर पोस्ट होगी वो थोड़ी सी कॉन्शियसली होगी, एंड इट वुड नॉट certainly reflect something that's going on in your personal life, and it shouldn't. क्योंकि consider LinkedIn as your professional portfolio. Consider LinkedIn कि एक stranger आ रहा है और वो अब जानना चाह रहा है कि आप किस चीज के बारे में interested हो, आप क्या कर रहे हो, what's your goal in life, what's your career, what are you pursuing right now. If you have to answer those questions, and if they see your LinkedIn profile, consider those questions answered through it. So they don't want, or they are not seeking to see कि ओके, उमैर की बर्थडे कब होती है, उसने बर्थडे पे कौन सी पोस्ट डाली है, किसके साथ हैंग आउट किया है, या फिजा ने कौन सी मूवी देखी है. एग्री. I mean, yeah, if you have really thoughtful, action oriented, and really thoughtful reflections. For example, आपने कोई movie देखी and you are really inspired by it, and you really feel that it taught me something and you want to share it with the world. This is how you can mold your personal experience into something that's valuable to a bigger community, and you can post it on LinkedIn about it. But there is a clear distinction, and you have to make this distinction first mentally so that you can apply it practically. So ये चीज
जानना बहुत ज़रूरी है कि इट शुड रिवॉल्व अराउंड योर एजुकेशन, योर करियर, योर नेटवर्किंग एंड कॉन्फ्रेंसेस यू हैव, योर रिसर्च वर्क दैट यू डू। ये सब चीज़ें एक ब्रॉडर किसी ने ब्रॉडर होराइजन में देखना हो ना, तो वो आपके लिंक्डइन पे जा सकता है। जब आपका ये माइंडसेट होगा, तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करेगी, आप दूसरे लोगों से स्टैंड आउट करोगे एंड आप बहुत कॉन्शियस होगे इन व्हाट यू वांट टू पोस्ट। परफेक्ट। दैट कम्स टू अनदर पॉइंट, आपकी बात से अभी आपने बोला कि प्रोफाइल स्टैंड आउट होगी और हम्म यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट सेल्फ, क्योंकि हर चीज को व्हाट आई सी इज कि हर चीज को दिखाने का भी एक राइट वे होता है, हाउ यू आर पोस्टिंग थिंग। ठीक है, नाउ दैट कम्स टू द पॉइंट कि दिखाने में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लिंक्डइन के अंदर द कीवर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, या द स्ट्रैटेजी दैट यू आर यूजिंग, एंड what more than important thing is about section. Like I see a lot of people, a lot of students that they say कि यार हमने बहुत सारा काम नहीं करा हुआ तो हम उसमें क्या लिखें. So but what I personally believe that about section is something that shows your milestones, your achievements, and the way forward, what's your ongoing thing. So what's your point on keywords related to about section and the fully optimization? जैसे कि हम बात करें कि optimization में ये बहुत जरूरी है कि आपने सिर्फ sections को भरना नहीं है. It's या not it's not like fill in the blanks. Yeah, ठीक है, about section है, just for the sake of about section I'll write it down, my name is Umair Ali and blah blah blah, and just finish it in 3 lines. फॉर एग्जाम्पल ये मुझे इसलिए भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि इफ यू आर सेइंग दैट यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर 10 years or 6 years or 3 years or maybe an year, you have a lot of learnings and the about section should reflect those things. What's your points on keyword selections, what's your points on about section, and what's your general idea ke why students are not doing that, what are the problems that they are facing? Starting with the keywords thing, and I feel like there are certain keywords, ये हर प्लेटफॉर्म के नीश के मुताबिक डिफर करता है। इंस्टाग्राम फेसबुक के अलग होंगे, यूट्यूब के अलग होंगे, इन लिंक्डइन के अलग है, बट दे आर, if you want to stand out, you have to use certain keywords that are aligned with the industry that you are hoping to get in touch with. And obviously जब आप वो keywords use करोगे तो obviously that should be relatable to the post that you're making, and for that post you have to have that certain feel of authenticity that you've done that for a particular course, you've attended that event. So एक post को design करना भी थोड़ा सा strategic होता है उस तरह से. And regarding the about section thing, about section is really important as much as the headline section is, वो भी बहुत important है. पर्सनली मैंने बहुत से प्रोफाइल्स ऐसे देखी हैं जिसमें अबाउट सेक्शन अगर आई डोंट नो टू कितने वर्ड्स होते हैं, 1500 होते हैं या कितने का होता है, मुझे ये आइडिया नहीं है, लेकिन काफी लिमिट होती ये है एक. आपने ये आपने सवाल अच्छा करा है और हम इसके इसी के अंदर ये मालूम करते हैं कि बिल्कुल. अबाउट सेक्शन की लिमिट क्या है. अबाउट हाँ, मुझे सेक्शन, बताओ आप. सेक्शन लिमिट इन लिंक्डइन. चलें जी, this section, this session is also becoming a यूजफुल. useful, yeah. So it's more likely your about section will be somewhere around 2600 characters, yeah. हाँ, तो 2600 कैरेक्टर्स का ये मतलब नहीं है कि आपने 2600 कैरेक्टर्स ही लिखने हैं. And you have to be as precise yet as um, as knowledgeable as you can be regarding yourself. So consider it as जैसे आप अपने cover letter में बड़ा सा precise करके अपनी job description के बारे में अपने बारे में लिखते हो, उसी को थोड़ा सा brief करके अपनी overall profile के बारे में लिखो, overall personality के बारे में लिखो ना. Obviously as you mentioned, आप अपनी growth के बारे में लिख सकते हो. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने को, आपने जरूरी नहीं है कि ये work experience ही हो. It should be your personal development, it should be your own reflection, and or even what are your goals and you how you want to achieve them. मैंने फॉर मी मैंने काफ़ी लंबे लंबे पढ़े थे एंड मेरा बहुत वन लाइनर है. एंड मैंने वन लाइनर वो इसीलिए चूज किया था बिकॉज इट रेजोनेट्स विद मी, इट्स हु आई एम, इट एंड इट टेल्स a lot about me, and it kind of initiates the conversation for someone who just stumbles upon it. So for me, मैंने एक one liner choose किया था ना, आप भी one liner कर सकते हो. It all depends how you want yourself to be perceived. Agree. And That what was sure. your last point?
Sorry. The last point was about section keywords and how you integrate them. I think you covered that all. Yeah, Okay, that's so that comes to another point, जो कि बहुत ही that I can see that I also see in your profile as well, that you start you done skill training programs, then goes towards the fine arts kind of a thing, then you doing a very different field. So बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि मैंने ये देखा है कि ना उनको कैरियर स्विचिंग या अपॉर्चुनिटीज को देखने में ना दे आर वेरी मच वरीड. I hmm. think take it as a plus thing क्योंकि it's not a rule book that if you graduated from LUMS in a specific thing that you need to do it for your life. You can Yeah. explore things, you can have your growth plan in different things. So Mm. how this thing goes from fine arts towards something like that and then move towards UK? What's the story? Like, did you plan it कि यार ठीक है मैंने यूके में जाके मास्टर्स करना है, या this happened suddenly कि ठीक है यार after my graduations going through different phases and after few experience I said to the point कि ठीक है यार अब now this is the right time to work in the like do my masters. You know, you recall me about one of a colleague that stumbled upon my exhibition when I was exhibiting my artwork at LUMS, and they asked me the same question, and I have heard this question a lot of times in my life, and sometimes मुझे शुरू शुरू में होता था कि how should I approach it, but then I just went honest with it, and the honest answer would be that. I do not categorize myself in a certain category. And I feel like nobody should label that themselves कि अगर उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो वो कुछ और नहीं कर सकते हैं. I've seen so many comedians who have studied engineering and they have switched it two different platforms. So one thing that I'll mention here is that fine arts was something that I always found joy in from my very young age, and I pursued it as a side hustle for me apart from my studies. So I never integrated the two, and it served as a balance because once I was stressed out with my academics, I had an escape. I just go and make paintings out of it. And Perfect. once and then I come back, and it's a balance for me in this way, and it works for me. And I never really thought to, I mean, people do ask me, आप लम्स क्यों गई हो, आप एनसीए चली जाती, you're so good in arts, etc. But I'm like, I as much as as much as I found joy in pursuing painting, I also like international affairs, and I'm also keen to learning about how the world operates and how the world works. And I really found myself involved in Pakistani politics and issues regarding on foreign policy, etc. during my LUMS time as well. So it's not कि मैंने पहले से ही सोचा था ये, it's more of समथिंग कि जो विद टाइम मुझे रियलाइजेशंस हुई हैं, लेकिन मैंने एक की खातिर दूसरे को नहीं छोड़ा. That's the key thing. If you have a passion, if you are good at basketball, and if you are at the same time you're pursuing maths, take it both. Like दोनों करो साथ, I'd Perfect. say, Perfect. So because मतलब it'll expand your it's skill set. so basically it's more like you are taking your passion and profession at the same time. It's not similar कि जरूरी नहीं है कि उस saying को follow किया जाए कि passion को follow करो तो life बहुत अच्छी होगी. It's more like balancing Yeah, out in a different way. yeah. That comes to another point कि इसमें सबसे बड़ा point जो होता है वो डर कह लें उसको या बच्चों को जो होता है, Mhm. that starts from the very initial state that is called career planning or career counseling. To be very honest, I'm pretty much sure overall in Pakistan we don't have that such criteria of career planning. Yeah. या अगर मैं बहुत specific हूँ, there are a lot of students who manage to go out but they don't know because a lot of degrees have their different names. They are like
giving different courses. A lot of my friends are in a friend of mine is like studying in UK as well. तो होता ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उसको अलग तरीके से नाम देती हैं, उसके अंदर कैटेगरीज बड़ी अलग होती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ अभी भी आजकल भी 24 के अंदर भी 2024 के अंदर भी हमें ऐसा लगता है कि इंजीनियर एंड डॉक्टर इज द वेरी वेरी वैल्यूएबल जॉब, जबकि दुनिया में और बहुत सारी और फील्ड्स हैं और उसको एक्सप्लोर करने में। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन कैरियर प्लानिंग? इज इट समथिंग दैट यू ऑलवेज फाउंड ऑफ कि नहीं यार, अगर कैरियर प्लानिंग पहले से की जाए तो काफी चीजों में हेल्प आउट हो सकती है थ्रू आउट योर कैरियर, थ्रू आउट योर एजुकेशन, थ्रू आउट टू बिकम अ बेटर पर्सन दैट यू आर टिल नाउ? यहाँ पे मैं एक चीज़ ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि हर किसी के पास इतनी आज़ादी नहीं होती है कि वो अ, चॉइस ले सके। So freedom of choice is really important. So that is why sometimes people are stuck in the same career even if they don't like it for years. People are stuck in the same jobs because even if they don't want to go, uh, go and have another 9 to 5 रोज का, बट दे डोंट हैव चॉइस, एंड वहां पे वो आपकी पर्सनल एक आ जाती है डिसीजन मेकिंग थिंग कि यू हैव टू परस्यू इट और यू हैव टू लेट गो इट। एंड करियर प्लानिंग, मैं ये बहुत इस चीज़ का वाज़ह तौर से बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत लैक करती है फ्रॉम अ वेरी इनिशियल स्टेज। यहाँ पे यूके में इट्स, यूके भी छोड़ दो आप, वैसे एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ले लो ओपिनियन, वहाँ पे बहुत यंग एज से आपको एक बच्चे को परस्यू किया जाता है कि वो काम करे। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आर नॉट what they'll studies are not enough. You have to work, you have to have that practical experience in the real life. तो वो बहुत यंग एज से जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो साथ साथ उनको प्रैक्टिकल टूल्स भी यूटिलाइज वो करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी सीवी बिल्डिंग स्किल्स आ जाती हैं, फिर आपकी लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स आ जाती हैं। तो उनका बहुत यंग एज से इन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ, इन सारे टूल्स के साथ अफिलिएशन होती है उनको, बहुत यंग एज से वो एक डेवलप्ड होते हैं। एंड रिगार्डिंग पाकिस्तान, आइड से कि यहाँ पे ज़रूर प्रमोट करना चाहिए हमें करियर प्लानिंग, लेकिन उस सबसे पहले इंसान को खुद पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। और अगर आपको कुछ फिगर आउट नहीं ना कर रहा, सो देयर इज नो हार्म इन taking a time for yourself. If I speak about myself, I took a gap year after my A levels because I didn't know what university But would that's a be good that's for a me. that's a bad thing in Pakistan. अगर आप एयर गैप लेते हैं, लोग आपको जज करते हैं। आई हैव ऑल्सो डन दैट थिंग आफ्टर माई इंटरमीडिएट। मुझे ऐसा लगता है, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि देर इज नो हार्म, क्योंकि इट्स नॉट अ रेस, टू बी वेरी Yeah. ऑनेस्ट। इन पाकिस्तान व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पे ना हमें ना रेस में लगा दिया जाता है फ्रॉम द डे वन ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर मॉन्टेसरी, ऑफ योर नर्सरी क्लास। इट्स मोर लाइकली मेरे बेटे के या मेरे बच्चों के इतने नंबर आए एंड शी गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। बट in the real world, who really cares about positions? I'm pretty much sure no one cares about your position, and I'm pretty much sure अगर मैं आपसे भी पूछूं what you score in class 9 or class metric or in your O levels, don't reflect your future, because it's a way of like आप हमेशा अपने एक्सपीरियंस से बिल्डअप ले रहे होते हो, अपने प्रीवियस Mhm. एक्सपीरियंस को देखते हुए आगे के फैसले ले रहे हो, तो यू शुड बी ओपन फॉर इट। Yeah, दैट I feel like this also stems from the fact that there is a collective fear in our community that if you don't pursue certain careers, आपका कुछ नहीं हो सकेगा, because certain careers only work in Pakistan. उससे अलग कुछ करोगे तो कमा कमा नहीं सकोगे, या जॉब सेक्टर उतना नहीं है। सो एक वो फियर होता है जिस वजह से sometimes people are obliged to choose the career they don't want. But at the same time, now I feel like just to say times are changing, this concept is also broadening, and people are getting aware about these things. Okay, we have a wider pool of options to pick our career from, and we can be whatever we want to be. And there's no harm in pursuing two different masters, and there's no harm in pursuing an education, like let's say when you are 35 years old,
you're doing your PhD etc. ये थोड़ा सा ये थोड़ा The सा ट्रेडिशन so अब आया है, लेकिन still we are confined in those chains and we have to break it. इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक दैट कम्स Yeah. टू अ क्वेश्चन, जिसमें मुझे एक सवाल अभी आया है, क्योंकि हम तो लहर में चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानीज आर मोर इनटू द लहर काइंड ऑफ अ थिंग। इट्स मोर लाइकली ओके फिजा ने बीबीए करा है तो नाउ फिजा के जो छोटे कजन है वो भी बीबीए करेंगे, क्योंकि फिजा एक सक्सेसफुल बंदी बनती जा रही है या एक अच्छी हाँ जगह काम कर रही है। हाँ That's also I face in my कि a lot of my relatives come to me कि यार हमारे बच्चे को भी मीडिया के अंदर शौक है and he wants to be like you, और वो ये चीज करना चाहता है। तो my first question is like he really wants to do it or he just you just putting your words in his mouth, ठीक है? तो कैरियर प्लानिंग तो बहुत लैक कर बहुत रही है, जरूरी है। ठीक है? लैग कर रही है, बहुत ज़रूरी है, और बहुत यंग एज से बच्चों को अगर इवन इफ आपको किसी ने नहीं बताया, बट यू नो दैट देयर इज़ अ करियर्स डिपार्टमेंट इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और देयर इज़ अ मेंटर इन योर लाइफ दैट दैट कैन हेल्प यू परस्यू इट। यू हमें अपनी मदद आप करनी है, वो वाली चीज़ है। एंड आपका हाथ पकड़ के कोई नहीं आपको बताएगा कि आपने किधर जाना है। एंड या यू ये एक चीज़ है कि गो फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज गो, बट ऑल्सो डेवलप योर ओन स्किल सेट वहाँ पे। एंड उस डेवलपमेंट पर योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है ऑन इंटरनेट, if you know how to use it properly. You have skill sets, you have events, you have courses. Just know it how to grab that opportunity. And यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि ये थोड़ी सी जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट पे हम डालते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एकेडेमिया की भी है एंड वहाँ पे हमारे एजुकेशन सेक्टर की भी है कि वो बच्चों को एक ब्रिज बने, इन दोनों एक मीडियम को बच्चों से एसोसिएट करवाने के लिए, ताकि वंस दे अगर एक चीज़ का आपको पता ही नहीं है और आपको बाद में पता चलता है, आपको थोड़ा रिग्रेट होता है। बट हाँ, एक चीज़ का आपको पता चल गया है एंड उसके बावजूद आप उस पे एक्ट नहीं करते हो, देन इट्स योर फॉल्ट। आपके पास एक ऑप्शन आई है, यू नो दैट दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, गो अहेड एंड डू इट। एंड इट्स अबाउट हैविंग एन ओपन माइंडसेट रिगार्डिंग योरसेल्फ। इट्स अबाउट नॉट पुटिंग लिमिट्स, not putting age limits, not putting career limits, any kind of time limit on your own mental abilities and your capabilities and your overall life. जब आप एक ओपन माइंडसेट से चलोगे तो मेरे लिए हार्म नहीं था कि मैंने एक साल गैप ईयर ए लेवल्स के बाद लिया, फिर मैंने एक साल गैप ईयर अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी लिया है। तो क्योंकि वो पूरा पीरियड मुझे, इफ आई बी मोर ऑनेस्ट, उस पूरे पीरियड में 4 साल जो मैं अपने घर से दूर रही थी, मुझे अपने फैमिली डायनामिक्स बहुत अच्छे से समझ आए थे, उस पूरे 1 साल में। उस पूरे 1 साल में मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ हुई थी, जो कि अब मैं समझ रही हूँ कि अब जब मैं अपने मास्टर्स शुरू मैंने किया है, सो इट इज़ सर्विंग मी वेरी वेल। बजाय उसके कि मैं स्ट्रेट अवे फ्रॉम स्कूल देन यूनी देन मास्टर्स विदाउट एनी गैप में शुरू कर लेती। सो आई फील लाइक इट्स important to give yourself time, it's important to have a career break, and there's no shame in it, there's no shame कि अगर आप एक जॉब छोड़ते हो, आपको नहीं पता मैंने क्या फिगर आउट करना है, टेक योर टाइम। बस ये इत्मीद रखो, अपने पे फेथ रखो कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। स्टे पॉजिटिव इन दैट वे एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, लुक फॉर देम। ढूँढने से खुदा भी मिल जाता है एंड ढूँढने से बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक तो हो गया। लुक फॉर देम। तो मतलब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है हमारी, हम इस बात पे एग्री करते हैं कि अपने आप को आपने इंसान ही समझना। यू आर नॉट अ मशीन, इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इट्स नो, गुड, यू आर लर्न नो, फॉर इट। यू if you यू want to आरंट अ take a मशीन। if you want to take a break of something, if you want to explore different things, it's good enough, ठीक है? एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग तो नहीं कहूंगा, बट एक छोटा सा मेरे दिमाग में भी सवाल आया है। डज इट मैटर्स कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के अगर यूके जाते हो तो आपकी इज्जत बढ़ती है या कम होती है? ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक अलग पॉइंट भी ये है कि ठीक है वो यूनिवर्सिटीज अच्छे ग्रेजुएट्स बना रही हैं, बट स्टिल वी हैव दैट थिंग, आईबी का ग्रेड है, लम्स का ग्रेड है, तो अच्छा है। और हुँ। अगर एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी का ग्रेड है तो वो एवरेज है। डू यू थिंक दिस दैट मेक्स अ डिफरेंस इन यूके? मतलब अगर आप जब यूके जाते हो तो क्या आपको प्रिविलेज मिलता है इस चीज का?
ओहो ये तो लम्स का ग्रेड है, मुबारक हो, ये आगे बैठेगा। ओहो। यहाँ पे तो फिर कहानी अलग है ना, यहाँ पे तो वो फिर अपनी बात करते हैं, ओहो ये एलएससी का ग्रेड है, ओहो वो ये फिर स्टैनफोर्ड का। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हाँ, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होना आपको कहीं ना कहीं पर्क्स देता है, लेकिन वो भी तब देता है अगर आपने उस पूरी जर्नी में उस इंस्टीट्यूशन से उसका पूरा 100% फ़ायदा उठाया है, उस अपॉर्च्युनिटी का। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आते हैं बट दे हैव नॉट डेवलप्ड देमसेल्व्स पर्सनली और प्रोफेशनली, वो चले जाते हैं। तो उनमें उन पे सिर्फ़ एक टैग होता है फिर वो यूनिवर्सिटी का, जो कि उनको पाकिस्तान में सर्व कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन वो यूके में या किसी और भी वर्ल्ड के कोने में नहीं करेगा, बिकॉज़ दे डोंट नो अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन। दे नो यू एंड दे नो हाउ यू हैव डेवलप्ड इट। इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि इट शुडंट बी अ डिस्करेजिंग फैक्टर कि एक, एंड इट शुडंट बी अ पॉइंट ऑफ जजमेंट कि आप अम, किसी को लेस इंटेलिजेंट परसीव कर रहे हो क्योंकि उसने सर्टेन सर्टेन इंस्टीट्यूशन से उसने इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई नहीं है, उसने सेल्फ लर्निंग की है। इट एज लॉन्ग जब तक आप किसी से हम कलाम नहीं होते हो, आप उसको जानते नहीं हो, उसके आइडियाज, उसके वैल्यूज, उसके साथ सफर नहीं करते हो या उसके साथ बात नहीं करते हो, एटलीस्ट आपको उसके बारे में जजमेंट नहीं बनानी चाहिए। एंड बहुत सारी जगह इस तरह की भी हैं कि जहाँ आपको फॉर्मल एजुकेशन बहुत हेल्प करती है, बिकॉज यू आर द सोल ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली, एंड फॉर इन ऑर्डर टू वर्क यू हैव टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन। तो वहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि ये आपका ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड वेरी करती है ये चीज़ कि आप ना किस तरह लेके चलते हो। बट हमेशा इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से और मटेरियलिस्टिक टैग से। अगर मेरे पे लम्स का टैग है या मैं यूके का टैग है, या आप पे लेट्स से दराज पे आप काम करते हो, दराज एक बड़ी अच्छी कंपनी है उसका टैग है, सो दैट shouldn't define us only. It should एग्री, be a part of it. It shouldn't एग्री, define who you are. एग्री एंड एग्री। इट्स अबाउट हाउ यू परसीव इट। ठीक है, Yeah, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, मैं उसमें नहीं डीप डाउन जाता, बट दैट कम्स टू अनदर टॉपिक ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। yeah. एवरीथिंग रिलेट टू यू, whatever the reason, क्या whatever be the time zone। आई थिंक Mm, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी होती है तो यूनिवर्सिटी में भी आपका क्राइटेरिया अलग होता है। व्हेन यू हैव अ mm, पर्सनल ब्रांडिंग इन कैरियर तो आपका अलग mm, तरीके से होता है। एंड आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग इज द बिगेस्ट थिंग दैट चेंज द ओवरऑल परसेप्शन जैसे लोग आपको देख रहे हैं। mm, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप दिखाते हो लोग आपको वैसा परसीव करते हैं, या व्हाट विल बी द राइट वर्ड, उस तरीके से समझते हैं आपको। क्योंकि mm, एज फार एज मुझे ऐसा लगता है कि आपका लिखना, आपका चीजों को शेयर करना, लोग अपने बारे में एक राय जरूर कायम करते हैं अनटिल और अनलेस के वो आपसे ना मिले। और mm, थ्रू थ्रू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसे ही रहेगा। तो mm, पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन और पर्सनल ब्रांडिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग टू कि अगर आप ब्लॉगर हो तो आप इंस्टाग्राम पे कह रहे हो, mm, या आप, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई टोटली एग्री, जब आप एक अलग यूनिवर्सिटी तो नहीं अलग मुल्क में पढ़ रहे हो तो mm, विदाउट नेटवर्किंग यू कांट बेयर इट। क्योंकि अ लॉट ऑफ mm, थिंग्स यू नीड टू कोलैबोरेट mm, विद योर स्टूडेंट फेलोज। एंड mm, उसमें आपके असाइनमेंट्स हैं, क्रॉस फंक्शनल चीजें हैं, क्रॉस रिलीजन चीजें हैं, हो सकता है उसमें अलग अलग रीजन से हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं। mm, तो व्हाट्स यू थिंक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग? क्योंकि a lot of people are now taking it serious, and I'm good। I'm feeling good कि यार एटलीस्ट चलो अब लोगों के अंदर इतना शऊर आ रहा है कि यार, हमेशा जैसा आपने भी बोला ना कि ढूंढने से खुदा मिल जाता है, लेकिन उसमें ढूंढना आपको पड़ रहा है। ये mm, तो इट्स लाइक द सेम थिंग। नॉट एवरी टाइम रिक्रूटर्स रीच आउट टू यू, mm, और इफ यू वांट टू रिक्रूटर्स टू रीच आउट टू यू, यू शुड हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज इनटू इट कि mm, आपकी प्रोफाइल वैसे दिखे। mhm. एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक अ पर्सनल ब्रांडिंग कैन चेंज इन योर लाइफ?
पर्सनल ब्रांडिंग मैं समझती हूँ किसी प्लेटफॉर्म से शुरू नहीं होती है, वो बहुत पीछे अगर हम एक स्टेप बैक ले लेना, वो जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो इस दुनिया के सामने, एक क्लास में जाते हो, कोलीग्स के साथ इंटरैक्ट करते हो, दैट मेक्स अप योर पर्सनल ब्रांड। बिकॉज पर्सनल ब्रांड में क्या आता है, पर्सनल ब्रांड में आपकी वैल्यूज आती हैं, आपकी टोन आती है, द वे यू स्पीक, आपके जेस्चर्स आते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स आती हैं, एंड योर कम्युनिकेशन स्टाइल्स। अब इन्हीं चीज़ों को जब आप ट्रांसलेट कर देते हो किसी मीडियम के ऊपर, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे आपको एक बड़े सटल तरीके से बताना होता है कि दिस इज हु आई एम, दिस इज दीज आर माई वैल्यूज, एंड एक सटल तरीके से बताना होता है। इफ यू आर सरकास्टिक, तो आप अपनी पोस्ट को वैसे थोड़ा डिजाइन कर सकते हो सटली। इफ यू आर विटी, तो आप थोड़ा सा वैसे कर सकते हो। तो वो एक आपकी पोस्ट, आपके एक ओवरऑल प्रोफाइल से एक थर्ड पर्सन को ये अंदाजा हो जाएगा, फॉर एक रिक्रूटर को ये अंदाजा हो जाएगा कि how the person is like, and और इसके साथ-साथ I'd say कि there is a slight difference between posting yourself and presenting yourself. So I wouldn't recommend people to boast about their achievements on LinkedIn कि मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। This doesn't this doesn't look professional. तो आपको थोड़ा-सा एक सटल तरीके से एक बड़े प्रोफेशनल मैनर में अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आपको you have to dress properly according to the occasion. अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हो, make pictures there, interact with people, and interact with people not because you want to post about it on LinkedIn, because you really want to get to know them and you really want to know people. वो एक mindset shift भी है। So I'd say कि the way you leave people feeling after they view your profile matters a lot. And इसी तरह recruiters भी आपको attract कर सकते हैं, या अगर आप recruiters को on LinkedIn approach भी कर रहे हो, तो the way they feel after leaving your profile, it says a lot about you. It's the same like कि जब आप किसी stranger से मिले हो एंड आपकी एक बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है, उसके बाद जब वो कॉन्वर्सेशन खत्म होती है, एक इंप्रेशन बन जाता है। So consider LinkedIn as your digital impression in a professional setting. So वो एक आपका digital professional impression है, which is different from your impression that could be on your Instagram or that could be on your Facebook. So that's really important. दैट्स लीड टू अनदर टॉपिक ऑफ इम्प्रेशन, कि आप किस तरीके से शोकेस कर रहे हो अपने आप को। आई थिंक पोर्टफोलियो इज ऑल्सो दैट मच इम्पोर्टेंट। Exactly. every what I'll say, every genre और जिस भी Mm-hmm. फील्ड के अंदर आप हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। If you're into content writing, if you're into I've seen that you made your website for the fine arts thing, ठीक है, and that is something not everyone is doing, to be very Yeah. honest, to क्योंकि authentication, if I'm seeing portfolios, just to be clear, मैं अपनी पोर्टफोलियो पे काम कर रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल बन रही है, जस्ट फॉर द ऑडियंस। बट द पॉइंट इज कि जरूरी नहीं है कि आपके पास वेबसाइट हो, क्योंकि Mm-hmm. वेबसाइट होती है तो ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है। और दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो Mm-hmm. हमारी फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो Mm-hmm. इंटरनेशनली बैठे हुए हैं, माय फ्रेंड्स फ्रॉम यूके, माय फ्रेंड्स फ्रॉम नाइजीरिया, माय फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जितने मोशन डिजाइनर्स हैं, पीपल हु आर Mm-hmm. वर्किंग इन यूके इंडस्ट्री और यूएई के अंदर मेरे जितने दोस्त काम कर रहे हैं, Mm-hmm. they usually have a website Mm-hmm. that's showcase the authentication of yourself. And I think authentication जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट से ही हो। Your profile tells a lot of things about yourself. Your portfolio tells a lot of things about yourself. Because what I personally believe कि creative person जो होता है ना, वो वैसे ही थोड़ा सा open होता है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू, लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव लोग जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत ही होता है कि ठीक है यार, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, हम देख रहे हैं चीजों को। सो हम जैसे देख रहे होते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे क्रिटिक्स ऐसे हो जाते हैं कि हम दूसरों के जब काम को क्रिटिक्स कर रहे होते हैं तो हम अपने काम को भी क्रिटिक्स करते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? क्योंकि मैं तो बहुत सारे टाइम से देख रहा हूँ, being in the industry for a lot of time, hiring a lot of people, or maybe suggesting people to different friends of mine, होता ये है कि एक पोजीशन डाली जाती है जिसका नाम होता है वी आर हायरिंग एक्स वाई जी। नो वन इज नो वन इज
केयर टू रीड द डिस्क्रिप्शन कि उस जॉब की डिमांड क्या है, और दे जस्ट लाइक सेंड द पोर्टफोलियोज और सेंड द रेज्यूमेस, बट पोर्टफोलियोज का ही नहीं पता लोगों को। पीपल आर स्टिल हम्म, यूजिंग गूगल डॉक्यूमेंट हम्म, as like a portfolio kind of a thing, क्योंकि आई थिंक जब बात आती है आपकी ओवरऑल परसेप्शन की, तो आपका फाइनल आउटपुट से ज्यादा उसकी मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप वो चीज true। बना कैसे रहे हैं। और मैं ये स्पेसिफिकली सवाल फिजा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइन आर्ट्स और रिलेटेड टू फील्ड्स जो कि क्रिएटिव है, उसका जो हम्म, फाइनल प्रोडक्ट है शायद उसमें इतना मजा नहीं आता। क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना, true। मैं अपना बनाया हुआ आर्ट वर्क या अपनी एनिमेशन या कोई प्रोजेक्ट हमने करा है, हम वो कंप्लीट कर हम्म, लेते हैं ना, द फाइनल रेंडर आई डोंट लाइक इट। ठीक है, हम्म, मजा उस चीज का है जो उस पूरे एक्सपीरियंस में है। क्योंकि 200-300 MB ऑफ अ रेंडर और a 5x6 और 6 फीट बिग पेंटिंग डोंट शोकेस द रियल यू। क्योंकि उसमें थॉट प्रोसेस क्या लगा है, व्हाट विच ब्रश स्ट्रोक्स यू आर यूजिंग, व्हाट्स द ओवरऑल फील बिहाइंड इट। सो व्हाट्स द इम्पोर्टेंट फॉर पोर्टफोलियो इफ आई आस्क यू? आई मीन इट्स रियली इम्पोर्टेंट। आप समझ लो कि दे आप पोर्टफोलियो को ऐसे समझ लो कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आप लिंक्डइन पे, क्योंकि एक सेक्शंस की लिमिट होती है, तो आप नहीं वहाँ पे बता सकते। सो पोर्टफोलियो एड्स अप अनदर लेयर ऑफ टेलिंग हु यू आर। इस तरह आप ले सकते हो। प्लस आपका पोर्टफोलियो आपके प्रोजेक्ट्स की एक इन डेप्थ, समझ लो, रिसर्च। इनसाइट देता है, इनसाइट देता है अगले को कि फलाने फलाने बंदे ने ये किया है। एंड इट शुडंट नेसेसरली बी रिजर्व्ड फॉर क्रिएटिव पीपल भी। मैं कहती हूँ पोर्टफोलियो हर किसी का होता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई टेक रिव्यूज करता है या कोई टेक गैजेट्स में बहुत इन्वॉल्व्ड है एंड उसने बहुत लीडिंग ब्रांड्स के साथ काम किया है, आप उन उन ब्रांड्स के साथ एक स्टोरी भी नहीं, लेट्स से एक एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। सो पोर्टफोलियो इज नॉट लिमिटेड टू क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, हाउएवर पोर्टफोलियो इज क्रिएटिव इन इटसेल्फ द वे यू यूज इट। तो आप उसको बहुत डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। सो प्लस आइड से कि आप जरूर हर किसी को, स्पेशली क्रिएटिव पीपल को, अपना पोर्टफोलियो जरूर मेंशन करना चाहिए। मेरी वेबसाइट बनाने का भी एक यही मकसद था कि इंस्टाग्राम, माय फर्स्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड through my art was Instagram. But I felt like Instagram didn't served me एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक ओवरऑल पिक्चर मिल सके कि अच्छा ये चल रहा है, या ये फेस सीन है तो वो ये कर रही है, या ये इस बारे में है। सो वहाँ पे आई स्टेप्ड इन आई लाइक द एंड नेम बाय द वे, फेस। इट्स माय नेम इन इनिशियल्स, फिजा Ah, सरमद। but yeah, but it sounds creative, like face scene, scene on and या something like that. It's good. Yeah, you're saying. सो थैंक्स। तो एंड देन इट्स अ लॉट ऑफ वर्क भी, क्योंकि अब जब मैंने पोर्टफोलियो बनाया है तो मैं मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं थी, क्योंकि वहां पे अब आपको एक वेबसाइट डेवलपर को भी लेके आना है। डिजाइन मैंने खुद की है वेबसाइट, बट माय वेबसाइट इज डेवलप्ड बाय अदर प्रोफेशनल्स एंड माय वेबसाइट इज हैंडल्ड राइट नाउ बाय अनदर पर्सन एज वेल। सो वो अब इससे हुआ क्या है कि जब मैं एक एक चीज नई सीखी है, एक चैलेंज नया लिया है कि अच्छा ये बनाना है, ये कांस्टेंट इटरेशन का प्रोसेस है। आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हो, बेहतर करने की कोशिश करते हो। उस चक्कर में आप नई स्किल्स सीखते हो। मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखी है, मैंने टीम वर्क सीखा है इसमें से कि अच्छा प्रोफेशनल्स के साथ मीटिंग है, अपनी आपने डिलिवरेबल्स बना के किस तरह उन्हें बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए अपनी वेबसाइट में। प्लस लॉजिस्टिक्स, प्लस हैंडलिंग ऑर्डर्स, ये बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप, प्लस वेबसाइट मैनेजमेंट इन अ वे, यू हैव टू ऐड द टेक्स्ट, यू हैव टू मेक योर इमेजेस फ्रॉम जेपैग टू वेब पी फॉर्मेट। मुझे नहीं था पता, फिर मैं जो सीखा मैंने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एज अ पर्सन बहुत बेहतर बनाती है। एंड आई वुड से स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियो योर सेल्फ फर्स्ट। आप पहले खुद ट्राई करो, देर आर ट्यूटोरियल्स आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड, खुद करो। एंड देन एक सर्टेन पॉइंट लाजमी आता है कि जब आपके पास वो Expertise. समटाइम्स टाइम टाइम नहीं बचता एंड समटाइम्स एक्सपर्टीज नहीं होती है उस प्रोजेक्ट को, उस चीज को फुलफिल करने में। देन स्टेप इन, मेक कनेक्शन, नए लोगों के साथ मिलो अपने, जो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।
एंड इन दिस वे एक आपका कनेक्शन भी लाइफ लॉन्ग बन जाता है. यू हैव a really really good output of what you are working from a lot of time. And मैंने अपनी वेबसाइट को लास्ट ईयर लाइक दिसंबर 23 में बिल्कुल रिवैम्प किया था. मैं पिछली वेबसाइट देखूं, मैं कह रही थी यार क्या थक्कर डिजाइनिंग मैंने की है. मैं इतनी इतनी शर्मिंदाई लेके now the लेकिन उस real Lahori is हाँ, talking. लेकिन लेकिन उस चक्कर में उस पॉइंट पे वो मेरे लिए बहुत बेस्ट थी. तो यही बात है, कॉन्स्टेंटली जिस तरह आप इवॉल्व करते हो आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बदलते हैं. आप देखोगे आपकी पोस्टिंग जिस तरह आप कर रहे हो फेसबुक पे, आप 2012 में जो पोस्ट लगाते थे और जो अब लगाते हो उसमें बहुत फर्क है. इसी तरह Agree. लिंक्डइन पे भी आप जब लगाओगे, एक कांस्टेंट प्रोसेस है, कांस्टेंट लर्निंग का प्रोसेस है. अपना माइंड, हैव एन ओपन माइंड विद इट एंड डू इट लाइक कॉन्शियसली. तो उसको Perfect. परस्यू करना चाहिए. अब इस लर्निंग के पॉइंट से मैं मेरे पास एक और पॉइंट अभी मैंने लिखा था. आई यूजली मेक नोट्स इन द कॉन्वर्जेशन के बीच में, बट उस पॉइंटर के बाद मेरे पास दिमाग में एक और चीज आई. We are जी like जी. talking about learning. ठीक है. हम्म. Learning is a very crucial moment. Learning is a very crucial thing जो आपको करनी चाहिए. And it's about, it's teach you about a lot of things. That हम्म. comes to another phase. I have seen a lot of people now, mashallah, doing different diploma courses, short courses available on LinkedIn, available on Udemy, Coursera. Google is offering a lot of courses. Facebook is offering a lot of courses. What do you think? You should also look into it. क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं, being as a creative professional, I also do courses related to other things like presentation skills, like personal grooming, like ethics, journaling. हम्म. ठीक है. सो मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा माइंडसेट है. मैं जानना चाहता हूँ कि फिजा कितना इससे अलाइन है, या आपके पास क्या इसका वो है कि लर्निंग नहीं रुकती है. और लर्निंग हम्म. आपको बहुत सारी चीजों को ग्रो करती है. क्योंकि एक तो लर्निंग वो है जो आपने 4 साल बस यूनिवर्सिटी में पढ़ ली, जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री. एक लर्निंग वो है जो आपको मार मार के आपकी इंडस्ट्री सिखा देती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. बट देयर इज ऑल्सो अ हम्म. पॉइंट व्हेन यू कम टू द पॉइंट कि आपको पता होता है ठीक है, नाउ अब मुझे पैसे कमाने भी आ गए. मुझे ये भी पता है कि मैं अपना स्किल जो है वो सेल कर सकती हूँ. आई हैव माई अदर हम्म. स्ट्रीम्स टू गेट सम मनी आउट ऑफ इट. नाउ हम्म. दैट पॉइंट, मैं जर्नली अगर कहूँ तो आफ्टर रीचिंग टू अ लेवल, आई गॉट टू द पॉइंट कि यार अब जो है ना सेल्फ लर्निंग को भी बढ़ाना है. ठीक है. चलो ठीक है, हमने नौकरी करी, हमने पढ़ा, हमने काम करा, बट learning and development, certifications. So the main point that I want to ask, what do you think about certifications, learning, and collaborations? Does हम्म. that help you? And if that help you, लाइक यहाँ पे मुझे पाकिस्तान का पता है. ठीक है. ये अभी आज से 2 साल पहले लोगों ने एक दूसरे को देख देख के सबसे पहले गूगल की एडवर्टाइजमेंट का कोर्स करना शुरू करे, फिर फेसबुक ब्लूप्रिंट होना शुरू हुआ, लाइक फ्री कोर्सेज होने शुरू हुए. देन इट कम्स टू द पॉइंट जहाँ पे लोगों ने थोड़ा उसको सीरियस लिया. पीपल आर नॉट डूइंग कॉर्सेरा कोर्सेज जहाँ पे आप फाइनेंशियल एड ले सकते हो. क्योंकि मुझे ऐसा हम्म. लगता है कि हर चीज कहीं ना कहीं से मिल जाती है. हम्म. इफ यू हैव लाइक उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, तो देयर शुड बी अ हम्म. सॉलिड रीजन कि आप कहीं ना कहीं से उसको कम पैसों में, या समटाइम्स इट ऑन फाइनेंशियल एड उसको भी एक्सेस कर सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट लर्निंग इन एज अ डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं दो चीजें जरूर मेंशन करूंगी. एक ये कि हम सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बहुत लेट सोचते हैं. वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इट इन रियली अर्ली. एंड वो अलग बात है कि वी आर ट्यून्ड टू दैट माइंडसेट कि यूनिवर्सिटी जाओगे, कॉलेज जाओगे तो ही बेहतर इंसान बनोगे. बहुत सारे और फैक्टर्स भी आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं. आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट बहुत यंग एज से शुरू कर सकते हो, कंसिडरिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ इट. एंड दूसरी चीज़ ये कि लर्निंग, जिस तरह हम कहते हैं ना किसी के लिए नेकी करो दरिया में डालो, इसी तरह लर्निंग है. लर्निंग करो, लेकिन ये ना समझो कि उसका सिला उसी टाइम मिलेगा. उस वो जिस तरह उसका जो चीज़ आपने सीखी होगी, वो जिस तरह ट्रांसफ़र होके किसी और साल में, किसी और जगह पे, किसी बिल्कुल न्यू सिचुएशन में, नॉवेल सिचुएशन में आपको वो लर्निंग हेल्प की गई होगी करेगी ना, जो आपने लेट्स से 5 साल पहले सीखी है. Once it would click, you at that time you would know its importance.
सो एक ये माइंडसेट ज़रूर रखना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने कोर्स कर लिया है, छिक दो, मैंने बस नहीं सीख लिया है। सॉरी, बट मैंने सीख लिया है। एग्री मैंने एग्री। सीख लिया है और मैं अब बस ना मैं अगले को सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ अब। दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द पॉइंट। हमेशा एक ऑनलाइन या सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज का एक ड्रॉबैक ये है, मुझे ये बहुत फील होता है कि वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा लैक करती हैं, क्योंकि आई एम more familiar and more tuned to learning in physical settings. जब कोई सामने बैठ के मुझे कोई चीज़ समझा रहा होता है तब मुझे समझ ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है। तो लेकिन कुछ लोगों को ऑब्वियसली रिमोट लर्निंग बहुत फ़ायदा होता है। आप अपने कंफर्ट ज़ोन में बात कर सकते हो, सॉरी बात नहीं, बात तो हम अभी कर सीख रहे हैं, सकते लेकिन हैं। कंफर्ट ज़ोन में सीख सकते हो अपने मर्ज़ी के टाइम के मुताबिक। सो डेफ़िनेटली आपको लेना चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर फ्री, लेकिन आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि मैंने 15 कोर्सेज किए हैं और क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे लगाने हैं ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने वो किए हैं, तो बस जी मैं धनाधन हर रोज कोर्सेज ना करता रहूंगा कोई ना दनादन कोई। करता जाऊंगा, और एंड पे जब एम्प्लॉयर मुझसे पूछेगा, एक सेटिंग मुझे देगा या मेरी जिंदगी में रियल लाइफ सेटिंग आएगी जहां पे वो चीज का यूज होना है और मुझे नहीं आता होगा, तब मैं क्या करूंगा? सो तो इट्स अबाउट बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट्स नॉट द अबाउट बीइंग द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी। लर्निंग। हाँ, या क्वांटिटी इट्स अबाउट द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ द लर्निंग। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी डज मैटर। इट्स नॉट हाउ क्वालिटी हाउ डज। हाउ मेनी कोर्सेज दैट यू आर डूइंग, बट इट्स लाइक उससे आउटकम आप क्या ले रहे हैं। एग्री, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दैट कम्स टू अनदर थिंग जो कि मैंने पहले लिखी थी, कॉमन मिस्टेक्स। हम्म। मैं तो खैर अपने हर गेस्ट स्पीकर से ये सवाल पूछ रहा हूँ, और आई आई कम अप विद लाइक 20+ मिस्टेक्स, बट व्हाट मिस्टेक्स डू यू थिंक। और मैं अब आप अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, सो विल ओनली डिस्कस अबाउट व्हाट मिस्टेक डू यू थिंक स्टूडेंट्स आर डूइंग, एज अ टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ स्टूडेंट जो कि अभी ग्रेजुएट होगा। सबसे पहली मिस्टेक तो मे बी वो ये कर रहे होंगे कि उनको लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होगी। वो अपना डिजिटल फुटप्रिंट ना उन्होंने या तो बनाया नहीं होगा या कोशिश भी नहीं की होगी वहां पे आने के लिए। बट हाँ, क्योंकि अब थोड़ा ज़माना बेहतर हो रहा है एंड पीपल आर सॉरी नो प्रॉब्लम। पीपल पीपल आर रियली नोइंग इट्स इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस, तो लोग वाकई आ रहे हैं लिंक्डइन पे। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर तो आप लिंक्डइन पे हो, यू शुड पोस्ट अबाउट your journey. You should post about why did you pursue this career, even if you didn't want it. That would be such a helpful post and relatable post on for someone like you, जो कि इस LinkedIn पे बस अभी आया है या आई है and उसने वो post देखी है, and it would be relatable. You have an instant connection like that. Plus, if you're doing a research work, if you're planning to do a research work, LinkedIn is so helpful as a student in a student community. वो आपको सर्टेन प्रोफेशनल से इंट्रोड्यूस करवा सकती है, या आप कर सकते हो, आप अपने प्रोफेसर से कर सकते हो जो उस रिसर्च वर्क में हैं, आप अपनी रिसर्च को पोस्ट कर सकते हो। इट बिकम्स इट रियली अट्रैक्ट्स लाइक माइंडेड पीपल। जिस तरह इस इंस्टा पे एल्गोरिदम आपको वो सेम चीज़ें दिखाता है ना, इसी तरह मैं समझती हूँ लिंक्डइन पे आपको सेम लोग मिलते हैं, कंसिडरिंग what you posted about. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ क्रिएटिव इंडिविजुअल और मैंने कोई एक क्रिएटिव एडवाइस पोस्ट की है या मेरे लिए ये काम किया है, तो आई वुड सी एनालिटिक्स में जाके कि वो पोस्ट बहुत रीच की है टू द पीपल हु आर इन द सेम इंडस्ट्री। तो इस चीज को कभी भी वो आप इस चीज को कभी भी टेकन फॉर फॉर ग्रांटेड ना लो। यू शुड ऑलवेज बी ऑलवेज परस्यू योर डिजिटल फुटप्रिंट वाली प्रोफाइल, जिस तरह मैंने पहले बात की। प्लस फिर मैं ये भी समझती हूँ कि अब आ गए हो उस पे, तो बी बी यूनिक येट बी प्रोफेशनल। अब यूनिकनेस का ये मतलब नहीं है कि आपने आपने हर बाउंड्री तोड़ के तो आप कमेंट्स में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो, मैस डीएम्स में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो, आप हर किसी को मैसेज कर रहे हो ये वो। Personally speaking, it's very sad to say that I've been approached by certain people who are just there for a conversation. I mean, I wouldn't want to have a conversation with someone जो कि सिर्फ conversation के लिए मेरे से LinkedIn पे आया है, because it's
It's LinkedIn not the serves right platform. different purpose. Yeah, it's a different it's for a different purpose. So it shows a lot कि आप even though आप बहुत बड़े कंपनी के सीईओ भी क्यों ना हो, बट इट शोज योर मेंटालिटी एंड इट शोज कि आप कहाँ से आ रहे हो. तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है. प्लस नॉट पोस्टिंग रेगुलरली, आई एम इन द सेम बोट. मैं भी नहीं रेगुलर But पोस्ट you करती, are लेकिन like, it's more likely it's an exercise. I personally believe जरूरी नहीं है कि regular posting हो. That also क्वालिटी की for हो, exactly. लेकिन अच्छी हो, लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि साल में बस एक दफा चढ़ा दी तो फिर ये कंप्लेन की कि यार लिंक्डइन पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा. लेकिन इट्स अबाउट कि आप मंथली एक एक आधा आपने कोई अचीवमेंट किया है, कुछ सीखा है, जस्ट जस्ट राइट समथिंग अबाउट इट, ताकि वो एक चीज आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती जाए. प्लस फिर मैं दोबारा से ये रीट्रेट करूंगी, डू नॉट बोस्ट योर सेल्फ, बी हम्बल येट बी डायरेक्ट ऑन द वे यू टॉक ऑन लिंक्डइन एंड द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ. एंड प्लीज फॉलो पीपल कॉन्शियसली, बिकॉज आपके एक सर्टेन कम्युनिटी है, एंड यूटिलाइज दैट. अपने लाइक माइंडेड इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ ज़रूर आप फॉलो करो, उनसे बात करो, उनसे रीच आउट करो. एंड प्लस वन मोर थिंग would be that रिगार्डिंग द स्किल्स, अपनी स्किल्स जरूर मेंशन करो वहां पे. एंड वो स्किल्स, अगर आपको कुछ ना समझ आए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मैं मुझे वो फलाने फलाने रोल की जॉब वहां मेंशन है और मुझे पसंद है. वन हैक दैट यू कैन डू इज कि उस जॉब की डिस्क्रिप्शन प्लीज पढ़ो. उस डिस्क्रिप्शन में वो बताएंगे कि उन्हें कैसा इंसान चाहिए. एंड इफ यू फील लाइक यू हैव सर्टन एक्सपीरियंस which gave you those certain skill sets, mention those in your profile. और ऑप्शन होती है ये लिंक्डइन पे. आप अपने इवन मास्टर्स के भी मैंने अगर अपडेट डाली है तो नीचे मैंने जो स्किल्स सीख रही हूँ या सीखी हैं वो मैं मेंशन कर सकती हूँ, और वो कैसे मैंने सीखी है वो भी मैं मेंशन कर सकती हूँ. सो इट्स अबाउट ट्वीकिंग द प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से, लेकिन उसका एक 100% एडवांटेज लेना. एंड लास्टली आईड से कि do not use the resume builder, and do not apply to jobs from the that apply jobs wala on cv ka section, because it's not professional. And the resume builder जो है वो आपका just profile का glance लेके वो authentic resume नहीं बनाता. And it's better to apply to jobs उनकी websites पे जाके, HR की professional email पे जाके. एंड ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ी हैं, ये चीज़ें मैं खुद पहले करती थी. एंड देन I realized that it is not working, and I realized my approach was wrong, and I changed it. And I landed in some really really good jobs during um my gap year, because I changed my strategy of using LinkedIn. तो ये बहुत ज़रूरी होता है, and it's coming from someone who is as naive and um, as unaware about the power of LinkedIn as any other student would be. But I learned it through the period, and I think everyone can. Last two things that I have in my mind is the one thing कि everyone is talking about AI. Mm-hmm. Everyone is using AI. Mm-hmm. I think now AI is more than traceable. क्योंकि अब एआई Mm-hmm. का इतना एक्सेस यूज कर लेते हैं. जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल, हमें ऐसा लगता है कि हम बस चैट जीपीटी को जाके ये लिखेंगे लिंक्डइन की पोस्ट लिख दो, और वो जो भी लिखेगा, क्योंकि इट्स बेसिकली अ लर्निंग मशीन. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ. वो लर्निंग मशीन है, वो जॉब्स में जो बंदा उसमें इनपुट करता है वो उससे भी सीखता है, और फिर वो उसी को रेप्लिकेट करके उसका जवाब बना के दे रहा है, एंड वाइस वर्सा. एआई कितना यूज करना चाहिए, कितना हेल्प आउट कर सकता है, या फिर अल्लाह के हाल पे छोड़ के बस एआई को एक प्रॉम्प्ट डाल दो कि राइट अप लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी एंड एंटर, एंड just copy paste everything with the emojis, with the pronunciation, with the everything. What do you think? And just one last thing. Do you Mm-hmm. think that students and professionals in UK, especially आप वहाँ पर हो, वो हमारे हमारे यहाँ जैसे होता है वो आई एम इंटरेस्टेड वाला
पे जो क्लिक कर करके लोगों के लिखा होता है अगर आपको जॉब चाहिए आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करें, हम आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेंगे। डू यू थिंक ये वहां पे भी होता है? क्योंकि कराची में तो बहुत होता है, पाकिस्तान में। For the second part of your question, I am not sure because I am not aware of this option. मुझे वाकई नहीं पता ये क्या चीज़ है. सो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड का कमेंट आता है, देयर फ्यू प्री लोडेड कमेंट्स दैट यू कैन पिक फ्रॉम। अगर आपने जैसे पोस्ट डालते हो तो उसमें प्री लोडेड कमेंट्स होते हैं ऊपर, जैसे अगर कोई जॉब की होती है तो उसमें लिखा होता है कि Congratulations आता है. जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन आता है, हाँ. इसी तरीके से होता है। अगर हायरिंग की पोस्ट होती है तो उसके नीचे लिखा हुआ आता है आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो कमेंट हो जाता है आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है। वो मुझे ऐसा लगता है यार नहीं करना चाहिए। मुझे, मैं तो खैर ये भी सोचता हूँ कि हाँ. आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये ओपन ओपन टू वर्क, हायरिंग हायरिंग का टैग अगर एचआर लगा रहा है तो अलग बात है। ओपन टू वर्क और इतना डेस्परेट होके भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक गलत परसेप्शन देता है। ठीक है, क्योंकि देर इज अ Um, राइट वे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी मेरी पर्सनल वो है, मैं चाहूंगा कि इसमें आप भी बताओ। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी बंदे ने या किसी एचआर मैनेजर ने या कल को फिजा भी डालती है कि आई एम लुकिंग फॉर फलाना 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 फलाना, उसके नीचे एक ईमेल एड्रेस होगा। ईमेल एड्रेस अगर hmm, नहीं भी है तो मैं फिजा की प्रोफाइल में जाके कॉन्टैक्ट इन्फो पे जाऊंगा तो मुझे फिजा का ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक hmm, है। अगर वहां नहीं होगा तो जिस कंपनी की ओपनिंग डाली होगी उस कंपनी का कोई ना कोई और एचआर मिल जाएगा, या उस कंपनी का hmm, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो मैं तो यही करता हूँ कि यार यूजली कैरियर पाथ, मतलब कैरियर की जो वेबसाइट्स हैं स्पेसिफिक, उनकी प्रोफाइल्स की या उनकी जो एचआर की उस पे करें, rather than कि hmm, जस्ट committed on I'm interested and putting that tag on your profile picture that I'm open to work या फलाना धमाका, hmm, क्योंकि वो ज्यादा डेस्परेट लगता है। क्योंकि एल्गो काम hmm, ही इसी तरीके से करता है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल फिजा मेरे पास ऐड है, या अगर मेरे पास फिजा ऐड नहीं भी है, मेरे पास फिजा का कोई दोस्त ऐड है, ठीक है, और मैं स्क्रॉल करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं फिजा, क्योंकि मेरे फर्स्ट कनेक्शन या सेकंड कनेक्शन में होंगी, तो फिजा की भी फीड कहीं ना कहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो किसी ना किसी ने लाइक करा होगा, तो मुझे पता चलेगा यार hmm, इट शोज अ डेस्परेशन। अपेरेंटली वो पाकिस्तान में शायद इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर जॉब नहीं है तो लोग कहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा कहीं पे भी कुछ हो ना, जैसे वो नहीं होता कि इस मैसेज को पढ़ने के बाद आप चार लोगों को शेयर करें आपकी लाइफ बन जाएगी, और आप फॉर एन इंस्टेंट इन इन लाइफ आप कहते हो यार मैं कर ही देता हूँ, क्या पता लाइफ बन जाए। सो व्हाट्स योर थॉट कि वहां पे भी ऐसे ही है? गोरे भी यही काम कर रहे होते हैं कि हर जगह जाके आई एम इंटरेस्टेड, और वो एक और हमारे यहाँ बड़ी अच्छी वो होती है यूएई के अंदर ना, कि लोग क्या करते हैं अपनी सीवियां प्रिंट कराते हैं और जाके ना सब सारे ऑफिस में बांट देते हैं। तो हाँ. कमिंग टू योर लास्ट पॉइंट, सीवी प्रिंट करवाने का इधर कल्चर नहीं है. एंड एम्प्लॉयर्स का अगर करियर फेयर भी होता है, दे डू नॉट रिकमेंड यू टू ब्रिंग योर सीवी. ये मैंने बहुत एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखा है, क्योंकि लम्स में जब करियर फेयर हुआ था, हम लोग सब पागलों की तरह अपनी सीवी जिन्होंने डिजाइन नहीं नहीं भी थी की, वो करके वो अपनी सुबह सुबह लेके गए थे कि हाँ हम एम्प्लॉयर्स को ड्रॉप इन करके आएंगे. दैट्स नॉट द केस हियर. ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर सकता है इससे. यहाँ पे इट्स मोर अबाउट इंटरेक्टिंग विद एम्प्लॉयर्स, एंड इफ दे फाइंड यू रियली इंटरेस्टिंग, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास होती हैं either from the email you gave in your interaction or your LinkedIn, and they approach you, then they really made make sure कि अगर मुझे फलाना कैंडिडेट अच्छा लगे तो वो उसको नोट डाउन रखते हैं. तो इट्स अबाउट हाउ इंटरेस्टिंग यू आर इन रियल लाइफ, not the CV thing. So second, coming to your second thing, that open to work wali, it is something that hamari careers and employment employability advisors do recommend fresh graduates or recent graduates to use that feature. But वो फीचर लगा के आपने ये नहीं समझना कि अब बस मेरे प्लेट में आ जाएगी जॉब. यू हैव टू सीक आउट योर जॉब, योर पर्सपेक्टिव करियर वेरी कॉन्शियसली एंड थ्रू द राइट मीन्स. सो वो फीचर यूज करना isn't bad, I'd say, but use it for a certain period of time only. Once it's not helping for you, or once you've secured the job, just cancel that feature out. Plus, I am interested wali thing. I agree with that comment wali. It doesn't work. अगर वहाँ पे जिसने भी पोस्ट की है, they have mentioned their email address, or you can stumble on their profile, get their contact info, and you can even speak a bit more um, holistically when you're emailing them, rather than you just popping in a comment and I'm interested in you. तो जब आप उनको एक
personal reach out karte ho na through the email or the LinkedIn for that particular role, you can speak a lot about yourself and you can show how much good you are for that position. So that that comment thing restricts you from doing that. So I wouldn't recommend people to do that, and I don't do it for myself because it doesn't work for me too.